Good morning, good evening, students. And once again, today I'm going to teach you some basic SQL command. Yesterday we have seen that we have learned how to create the table, how to create database, how to create table. We have also studied yesterday about the DDL, DML, and TCL. After studying DDL, DML, and TCL, we have learned how to create table, how to create database. Okay, and we have also learned how to insert the records in database. So we will continue the learning. Okay, so let's today we shall be working on this database, the database which you can see here. Okay, you can see this is a database. This is a database and its name is, this is a database. This is a table, not database. This is a table. It has got the four attributes: role, name, sex, and date of birth. I hope you would be aware. The name of the table is not been defined here. Let the name of the table be STUD, right? Name of the table will be STUD, right? And it has got the four attributes. You can pretty well see here that the first attribute, this is role. And can you tell me what is its data type? Its data type is integer. Now next to it, you can see the next column. The next column, it is name, and its data type. It is character, char or varchar. Okay, and next to it, it is sex. Next to it, it is sex. Okay, and it is having the data type character, and its width is 1. After that, you can see the last, it is the date of birth. Okay, its data type is, obviously its data type is date data type. So should I write here? Let me write all the data types. Okay, you can see here that, as you can see, the first one, it is role. Role का data type कौन सा होगा? Role का data type integer. Name का data type, name will be of data type character. Its width, you will fix your width according to you. Then is the sex, it is of character, size 1. And date of birth, the name of the, it is name, which is date of birth, and its data type is date. ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ का डेटा टाइप क्या होगा? डेट होगा. तो हम लोग आज इसी पर वर्क करेंगे. ठीक है, इसी का रेफरेंस, इसी टेबल पर वर्क करेंगे और हम लोग देखेंगे कुछ अदर कमांड. ठीक है. So now once again we will start our work. So we will create a database. Okay, let's so how to see the list of database? In order to see the list of database, we have the command show database. Okay, we will make use of this. Okay, show databases. Show databases. Okay, show databases. So finally, you can see I have used the command. I have used the command show database. This is the command. Okay, each command is followed by semicolon. Okay, each command is, now these are the database. So should, which database should I use? I'm going to create my own database, right? I'm going to create my own database. ठीक है, मैं अपना एक database बना देता हूँ. Create database JITU. Okay, G2, right? Oh, what it is written? Can't create database G2. Database exist. ठीक है, तो एरर पर, एरर को पढ़ना चाहिए. यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, can't create database G2. Database exist. So yes, you can see here the G2 database is already here. Okay, you cannot create a database. तो जब database पहले से है तो हम उस पर कोई और database उस नाम से नहीं बना सकते हैं. चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दूसरा डेटाबेस बना लेते हैं. इसको हम लोग कहते हैं क्रिएट. फिर से हम लोग लिखते हैं क्रिएट डेटाबेस G2 1 कर देते हैं. ठीक है, 1 कर दिया. तो फाइनली आई हैव क्रिएटेड अ डेटाबेस. आई हैव क्रिएटेड अ डेटाबेस and finally I have created a database.
Okay, now you can see it by using show databases, show databases, right? So you can see the G21 is has been created here. G21 has been created. Command which I had given, it is show databases. Okay, so I hope it is clear to you. I hope it is clear to you. Next, next to it, now we will create the table. Okay, वो जो टेबल हम लोग दिखाए थे, देखे थे, वो टेबल को हम लोग बनाएंगे. ठीक है, तो what we will write here, we have the command create table. Okay, we have the command, wait 1 minute. uh, we have the command create table. Create table. What was the name of the table? Stud, stud, stud. Now I have given the bracket. Okay, now I have given bracket. Okay, now I have given bracket create table stored, and the first one was roll. And what was the data type? इसका data type क्या था? Integer. और size क्या लिए? 3. Then after name, data type I am taking character, size 30. फिर उसके बाद क्या लिए थे? Sex लिए थे, sex. उसके बाद sex लिए, ठीक है, डेटा टाइप कैरेक्टर, साइज 1. देन आफ्टर आफ्टर दिस फिर हम क्या लेंगे थे? डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ. ठीक है, डोंट ट्राई टू गिव स्पेस बिटवीन द कॉलम नेम. ठीक है, कॉलम नेम के बीच में ऐसा नहीं कि हम इसको ऐसे लिखेंगे डेट, फिर उसके बाद यहाँ पर स्पेस दे दिया, ये गलत हो जाएगा. यहाँ पर अंडरस्कोर हम डाल सकते हैं, यहाँ पर डैश डाल सकते हैं. ठीक है, but you cannot give a space. Date of birth, what will be data type? Date data type. Finally we close the, and we have closed it. Okay, no database. See what the error is being given here, what the error has been given, no database selected. So we have not opened it. कोई भी टेबल कहाँ बनेगा? तो डेटाबेस में बनेगा. डेटाबेस को हम ओपन नहीं किए हैं, डेटाबेस को हम सेलेक्ट नहीं किए हैं. चलो हम लोग इस प्रॉब्लम को भी हम लोग दूर कर लेते हैं. ठीक है, तो इसको हम लोग करेंगे यूज JITU G21. हम लोग डेटाबेस बनाए थे. ठीक है, यूज G21. ठीक है, नाउ वी हैव डन डेटाबेस चेंज. फिर से उसी कमांड को हम यहाँ पर लिखेंगे. वी विल राइट दैट कमांड. ओके, यू कैन सी डेट ऑफ बर्थ. नाउ फाइनली यू कैन सी, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, टेबल हैज बीन क्रिएटेड. ओके, क्यूरी ओके, 0 रो अफेक्टेड. ये हमारा टेबल बन गया. ठीक है, हमारा टेबल बन गया. अब यहाँ पर टेबल जब बन गया तो अब क्या करना है? टेबल में रिकॉर्ड को इंसर्ट, टेबल के स्ट्रक्चर को देखने के लिए हम क्या करेंगे? डिस्क. ठीक है, DESC डिस्क. क्या नाम है टेबल का? टेबल का नाम है STUD, डिस्क स्टूड. फाइनली वी हैव सीन द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल. टेबल के स्ट्रक्चर को हम लोग देखे. ठीक है, तो हमारे टेबल में कौन कौन सा कॉलम है? स्ट्रक्चर को देखे, इसका मतलब है कि हमारे टेबल में कॉलम है, एक रोल है, उसका डेटा टाइप इंटीजर है, साइज 3 है. नेम है, उसका कैरेक्टर डेटा टाइप है, साइज 30 है. ठीक है, सेक्स है, उसका भी डेटा टाइप कैरेक्टर है, साइज 1 है. डेट ऑफ बर्थ है, उसका क्या डेटा टाइप है? उसका डेटा टाइप डेट है. तो देखो डेट का यहाँ पर कोई भी साइज नहीं है. ठीक है, तो डेट का साइज क्यों नहीं है? बिकॉज डेट इज अ फॉर्मेट. डेट इज अ फॉर्मेट, एक फॉर्मेट है. लाइक MMDDYY. ठीक है, लाइक DDMMYY. Date is a format. I hope you have understood it. Any problem? Oh. तो देखो स्टूडेंट, अभी हम ये टेबल को बना लिए. ठीक है, अभी हमने ये टेबल को बनाया. अब हम लोग ये डेटा को उसमें डालेंगे. डेटा आपने ये याद रखना है. पहला है अमित, मेल, और इसका डेट ऑफ बर्थ है. हम लोग इसी डेटा को डालेंगे. ठीक है, तो लेट्स सी, वी ट्राई टू इंसर्ट. ओके, we will insert here. We will write insert into, insert into. ठीक है, क्या नाम है? टेबल का नाम क्या है? स्टूड.
Okay, values. Okay, what we will write? Value, not value. Values. Okay, what we will write? Values. तो पहला वैल्यू क्या है? वन, रोल का वैल्यू है वन, अमित, एम, और 90, 12, 5, 90, 82। ठीक है, क्या है? 12, 5, 90, 82। तो फर्स्ट इट इज द वैल्यू ऑफ, देखो सबसे पहले क्या है यहाँ पर, यहाँ देखना है, ध्यान यहाँ देना है। सबसे पहला फील्ड हमारा क्या है? सबसे पहला फील्ड है हमारा, सबसे पहला फील्ड है हमारा रोल। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है, रोल के लिए वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। ठीक है, तो पहला फील्ड हमारा है रोल, रोल के लिए हम वैल्यू दे दिए। सेकंड फील्ड हमारा है, सेकंड फील्ड है हमारा, देखो यहाँ पर सेकंड फील्ड हमारा है नेम। यहाँ देखो सेकंड फील्ड हमारा नेम है। नेम के लिए कॉमा के बाद यहाँ पर हम वैल्यू डालेंगे। ठीक है, तो कॉमा के बाद हम वैल्यू डालेंगे। तो कॉमा, कॉमा आई हैव गिवन, कॉमा के बाद क्या, कौन सा था नाम? अमित, और 12, 5, 82। ठीक है, तो अमित, AMIT, अमित, देन सेक्स इट इज मेल। ओके, एंड डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ हम जब भी लिखेंगे तो पहले ईयर लिखेंगे, फिर मंथ लिखेंगे, फिर उसके बाद डेट लिखेंगे। ठीक है, और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा। ठीक है, तो देखो हम लोग लिखते हैं, उसका क्या डेट ऑफ बर्थ है, तुम्हारे क्या डेट ऑफ बर्थ है? 12, 5, 1982। ठीक है, तो 90, 82, 12 and 05। ओके, तो इस तरीके से इसको ऐसे डाल दिए, यहाँ पर एंटर प्रेस किए, देखो यहाँ पर क्या लिखा, वन रिकॉर्ड इंसर्टेड। यू कैन सी हियर इट हैज रिटेन वन रिकॉर्ड इंसर्टेड। ठीक है, एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। फिर अब हम दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। दूसरा रिकॉर्ड है सुमीत, और है 29/6/1990। ठीक है, दूसरा क्या है? सुमित। यहाँ पर लिखेंगे फिर इंसर्ट इनटू स्टूड वैल्यूज। ठीक है, रोल नंबर, रोल का वैल्यू 2, नेम का वैल्यू देंगे सुमित, नेम का वैल्यू देंगे सुमित, सेक्स दे दिया मेल, और डेट ऑफ बर्थ क्या है हम लोग तय किए हैं? 29/6/1990। 29/6/1990। ये बताओ, ये सही सही रहेगा? ये सही नहीं रहेगा, देखो एरर देगा। ठीक है, ये एरर देगा। ले लिया ये, चलो ठीक है। मगर हमारा सही फॉर्मेट जो बाय डिफॉल्ट रहता है, वो रहता है ईयर, मंथ, और डे। ठीक है, तो वन रिकॉर्ड अफेक्टेड। ओके, वन वार्निंग, वार्निंग भी देखो एक दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो चलो इसके बाद हम लोग फिर थर्ड रिकॉर्ड अभी हम लोग इसमें डाल देंगे, अमृता, 15/6/1991। ठीक है, इंसर्ट, इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू स्टूड वैल्यूज, वैल्यूज, रोल नंबर 3 इट इज अमृता, अमृता, roll number 3 it is Amrita, female, and date of birth for the Amrita what we have set here is 15/6/1991. Okay, 15, 15/6, 15/6/1991। ठीक है, ऐसे सेट किए, इसको यहाँ पर डाले। देखो यहाँ पर दिया क्यूरी रिकॉर्ड, वन रिकॉर्ड, वन रो अफेक्टेड। ओके, देखो अब ये सब करने के बाद अब हमें देखना है। ठीक है, देखना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? सेलेक्ट, कल भी बताए थे, आज भी उसको कर रहे हैं। सेलेक्ट, सेलेक्ट रोल फ्रॉम, रोल फ्रॉम स्टूड। तो ये सिर्फ रोल कॉलम को दिखाएगा। ठीक है, STUD, ये सिर्फ रोल कॉलम को दिखाएगा। मान लो हम लिखे सेलेक्ट रोल कॉमा नेम फ्रॉम स्टूड। ओके, तो ये रोल और नेम को दिखाएगा। फिर हम मान लो लिखते हैं सेलेक्ट रोल, सेलेक्ट डेट ऑफ, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ कॉमा नेम कॉमा रोल फ्रॉम स्टूड। तो ये क्या क्या दिखाएगा?
डेट ऑफ बर्थ, नेम और रोल दिखाएगा। देखो दो हम गलत फॉर्मेट में जो डेट दिए थे वो नहीं लिया है, 0 0 करके दिखाया है। ठीक है, तो इसके आगे अब हम लोग और चलते हैं। ठीक है, तो आई होप ये अब सारे कॉलम्स को देखना है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार। ठीक है, आई एम नॉट नोइंग कि कॉलम का नाम क्या है, ये जानकारी नहीं है कि कॉलम का नाम क्या है, हम ऐसे पर टेबल का नाम पता है, हम सीधे लिख देंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूड। ठीक है, तो हमें पूरा जो उस टेबल में जितने भी कॉलम रहेंगे वो सब का वैल्यू, सब का हमें रिकॉर्ड दिखा देगा, सबका सब वैल्यू दिखा देगा। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। अब इसके बाद आज हम लोग नया सीखेंगे कि इसमें हम रिकॉर्ड को चेंज कैसे करें। जैसे मान लो अमित का सेक्स हमको फीमेल करना है, अमित जिसका रोल नंबर 1 है उसका हमको, या फिर सेलेक्ट स्टेटमेंट को आज हम लोग और देखते हैं। ठीक है, जैसे सेलेक्ट select star from stood where where roll is equal to roll is equal to 1। ठीक है, जिसका रोल 1 है उसको देखना है। ठीक है, जिसका रोल 1 है उसको देखना है। तो देखो सिर्फ रोल 1 के डेटा को दिखाया। हम इसमें क्या कर रहे हैं, आई एम यूजिंग अ कमांड। देखो यहाँ पर क्या है, वेयर कमांड का यूज कर रहे हैं, एक कमांड नहीं क्लाउज का यूज कर रहे हैं। सेलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट एक हमारा अलग है। ठीक है, देखो यहाँ पर, ठीक है, सेलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट एक हमारा है। ठीक है, सेलेक्ट करेगा स्ट्रिक मगर किसका, जिसका रोल नंबर 1 रहेगा उसका। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड, यू वुड हैव अंडरस्टूड इट। मान लो फिर हम देते हैं सेलेक्ट, हमसे आई वांट टू सी द रिकॉर्ड ऑफ द फीमेल। ठीक है, फीमेल का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम stored where sex is equal to f। ठीक है, जिसका सेक्स f है वैसे रिकॉर्ड को। तो देखो यहाँ पर हमारा कंडीशन क्या है, इसमें हमने कंडीशन क्या दिया, हमें सेलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम स्टूड करना है मगर किसका करना है, जिसका सेक्स f होगा। देखो इसमें से f इसमें से f किसका है, f एक ही है, अमृता का है, तो इसका रिकॉर्ड हमें दिखा दिया। ठीक है, अब हम मेल का देखते हैं। ठीक है, जब हम मेल का देखेंगे तो देखो यहाँ पर मेल का जब हम देखेंगे तो क्या लिखेंगे, सेलेक्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम stood where where sex is equal to male। ठीक है, तो you can see now it has given, okay, you can see it has given the extracted the record from the table which sex is male। जिसका मेल है सिर्फ उसी का दिखाया। तो वेयर क्या करता है, वेयर इज यूज टू फिल्टर द रिकॉर्ड। वेयर क्या करता है, रिकॉर्ड को फिल्टर करता है, जो कंडीशन के अनुसार रिकॉर्ड को फिल्टर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को ध्यान ये देना है कि वेयर फिल्टर द record from table according to condition। ठीक है, यहाँ पर हमारा कंडीशन क्या था, यहाँ हमारा कंडीशन क्या था, हमारा कंडीशन था कि ये कंडीशन है सेक्स एम होना चाहिए। अब हम ऐसा करते हैं कि जिसका हम चलो अभी हम लोग इतना ही देखते हैं, फिर अब हम लोग चेंज करना सीखते हैं, फिर हम लोग कल और देखेंगे, एंड का यूज भी देखेंगे इसमें। ठीक है, तो देखते हैं या अभी ही कर लें, कर लेते हैं, चलो एंड का भी यूज कर लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम stood where where sex is equal to m and ठीक है, roll is equal to roll is equal to 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कितने कंडीशन दिए हैं, हाउ मेनी कंडीशंस वी हैव गिवन। यहाँ पर हमारा 2 कंडीशन है। देखो इसी जब माई सेलेक्ट स्टेटमेंट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूड एक हमारा स्टेटमेंट हो गया। दूसरा हमारा है कंडीशन क्या है, सेक्स इज इक्वल टू एम, पहला कंडीशन हमारा ये है। दूसरा कंडीशन है हमारा रोल इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो सेलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट स्टूड करेगा मगर किसको करेगा,
जिसका सेक्स मेल रहेगा, और ठीक है, और यहाँ पर यूज किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, और मतलब इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इसको एंड। ठीक है, मतलब दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड करेगा उसी को दिखाएगा। ठीक है, उसी को दिखाएगा। तो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हुए यहाँ पर देखो हमारा कौन सा रिकॉर्ड है, यहाँ पर हमारा जो रिकॉर्ड है वो है सुमित का रिकॉर्ड। ठीक है, वो हमारा सुमित का रिकॉर्ड। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। तो हम यहाँ पर हम क्या समझे कि and is used to combine two conditions। ठीक है, and is used to combine two condition two condition and two condition and return or return those rows which certified the both कंडीशन। वैसे ही रिकॉर्ड को रिटर्न करेगा जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। सभी को समझ में आ गया होगा एंड का। ठीक है, अब हम लोग जैसा कि हमारे सिलेबस में है क्लास 10th में अपडेट स्टेटमेंट को लिखना। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, तो हम लोग अपडेट स्टेटमेंट को हम लोग यहाँ पे लिख के देखेंगे पहले हाउ वी राइट द अपडेट स्टेटमेंट। देखो अपडेट स्टेटमेंट को हम लोग लिखते कैसे हैं, हम लोग लिखते हैं अपडेट अपडेट, फिर उसके बाद हियर वी राइट टेबल नेम। ठीक है, वी राइट टेबल नेम। ठीक है, देन वी राइट सेट, देन वी राइट कॉलम नेम। ठीक है, देन वी राइट column name and then we write value। ठीक है, इस बात को हम समझा देंगे, परेशान मत होना। ठीक है, हम लोग ऐसे लिखते हैं और फिर उसके बाद लिखते हैं कंडीशन, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कंडीशन। ठीक है, दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर। जैसे मान लो कि हमें जो है अमित का नाम सुमित कर देना है। ठीक है, माय क्वेश्चन इज दैट आई वांट टू चेंज द नेम ऑफ अमित टू सुमित। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अमित का नाम को सुमित कर देना है। तो टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम हमारा है स्टूड। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपडेट स्टूड, अपडेट स्टूड सेट नेम इज इक्वल टू नेम इज इक्वल टू नेम इज इक्वल टू अमित अमृता। सेट नेम इज इक्वल टू AMRI अमृता, सेट नेम इज इक्वल टू अमृता। ठीक है, ये बात। ठीक है, अब देखो यहाँ पर समझो क्या लिखा हुआ है, अपडेट स्टूड सेट नेम इज इक्वल टू अमृता। ठीक है, तो देखो हम क्या करने जा रहे हैं, अपडेट करने जा रहे हैं। अल्टर और अपडेट में क्या अंतर है अच्छे तरीके से बता चुके हैं। अपडेट मतलब डाटा में चेंज करेगा। ठीक है, अपडेट कौन से टेबल को हम के डाटा को चेंज कर रहे हैं, ये हमारा स्टूड टेबल है उसके डेटा को चेंज कर रहे हैं। किस कॉलम को चेंज कर रहे हैं, तो नेम वाले कॉलम को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। सबसे पहले हमारा क्या है, अपडेट, फिर उसके बाद है टेबल का नाम, फिर है उसके बाद लिखे सेट और फिर कॉलम का नाम। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। दिस इज द नेम ऑफ द टेबल, यू मस्ट नोट इट। दिस इज द नेम ऑफ टेबल, नेम ऑफ टेबल अपडेट, नेम ऑफ टेबल। फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, सेट नेम, नेम। ठीक है, तो ये नेम क्या है, नेम यहाँ पर कॉलम का नाम है। ठीक है, कॉलम नेम। ठीक है, और ये अमृता क्या है, अमृता यहाँ पर हमारा अमृता इज अ वैल्यू। ये अमृता क्या है, अमृता वैल्यू है। किसका वैल्यू है, नेम का वैल्यू है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, इसके बाद एक चीज और घट रहा है जो हम नहीं लिखे यहाँ पर, वो लिखे हैं वेयर, वेयर, वेयर क्लाउज हम नहीं दिए, वेयर नेम इज इक्वल टू अमित। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सिर्फ अमित जिसका नाम है उसी का अमिता करेगा, सबका नहीं करेगा। अगर हम इसको हटा देते हैं, वेयर वाली बात नहीं लिखते हैं, तो सबका अमिता कर देगा।
ठीक है, अमृता कर देगा। अब किसका करेगा? अगर वेयर लिख दिए हैं तो वो उसी का करेगा जिसका नाम अमित है। ठीक है, आई होप इट वुड बी क्लियर टू यू। लेट्स सी इट प्रैक्टिकली। ठीक है, हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे अपडेट। टेबल का नाम क्या है? स्टूड सेट। सेट कॉलम का नाम क्या है? नेम इज इक्वल टू अमृता, AMRITA, अमृता। अगर हम ऐसा कर देंगे तो देखो यहाँ पर क्या देगा? अपडेट स्टूड सेट नेम इज इक्वल टू अमृता, ऐसे कर दिए। अब यहाँ पर हम टेबल को देखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूड। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या सबका नाम अमृता कर दिया। देख रहे हो ना, यहाँ पर व्हाट यू कैन सी, सबका नाम देखो अमृता कर दिया। यहाँ देखो सबका नाम अमृता कर दिया। आई होप इट वुड बी विजिबल टू यू। ठीक है, ये देखो सबका नाम अमृता कर दिया है। ठीक है, हमको ऐसा नहीं करना था। ठीक है, ऐसा हमको नहीं करना था। ठीक है, तो क्या करेंगे? रोल बैक करते हैं। जीरो रो अफेक्टेड, रोल बैक। हाँ, चलो, और ऑटो कमिट ऑन किया हुआ था, ऑटो कमिट हो गया। ठीक है, तो चलो हमको रोल नंबर 1 का हमको नाम को चेंज करके अमित करना है। तो क्या लिखेंगे? अपडेट, अपडेट टेबल का नाम स्टूड सेट नेम इज इक्वल टू अमित। सेट नेम इज इक्वल टू अमित किसका? वेयर रोल इज इक्वल टू 1, जिसका रोल 1 है उसका। देखो यहाँ पर हम सेलेक्ट करके देखें तो देखो चेंज हो गया। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। मान लो अमित का हम अमृता रोल नंबर, रोल देखो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ देख रहे होगे यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर 00 लिखा हुआ है। चलो इसमें हम कोई डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, मतलब हम यहाँ पर कोई रिकॉर्ड को चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, किसका? अमृता का डेट ऑफ बर्थ। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? अपडेट स्टूड सेट डेट ऑफ, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ इज इक्वल टू, चलो हम देते हैं 2012 और 5, मतलब 5/12/2000 डालते हैं। ठीक है, अपडेट स्टूड सेट डेट ऑफ बर्थ इज इक्वल टू इतना। ठीक है, तो ये सब का कर देगा। हमको किसका करना है? रोल नंबर 3 का करना है। वेयर, वेयर रोल इज इक्वल टू 3। ठीक है, ओ माय गॉड, अननोन कॉलम डेट ऑफ बर्थ। देखो एरर क्या दे रहा है? एरर दे रहा है अननोन कॉलम डेट ऑफ बर्थ। मतलब हम जो यहाँ लिखे हैं डेट ऑफ बर्थ, ये गलत लिखे होंगे। ठीक है, ये और ये मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, ये और ये दोनों मैच करना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कहाँ मिस्टेक किए हैं। ठीक है, लेट्स सी। तो देखते हैं अपडेट डेट, डाटा ऑफ बर्थ हम लिख दिए, क्या लिखे? डाटा, जबकि होना क्या चाहिए था? डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। ठीक है, देखो यहाँ पर हो गया। अब इसको हम सेलेक्ट करके देखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूड। ठीक है, देखो डेट ऑफ बर्थ चेंज हो गया। आई होप यू यू वुड हैव अंडरस्टूड इट। और अगर कोई दिक्कत होगा तो फिर पूछ लोगे।